Muslims advocates have formed a forum in the name and style the Advocates Forum with the sole objective of emphasizing and protecting their rights and duties in their legal profession. In particular, the continuation and survival of women and young advocates in the fraternity. The formation of this forum was the brainchild of Mr. Mudassir Ahmad Khan, Syed Qasim and other young advocates practicing in Mysuru A4 in order to achieve their desire. A meeting of the Muslim Mysuru was convened on the 25th of December 2021 in Majestic Convention Hall, Rajivenagar, Mysuru. The said meeting, the guest of honor were Mufti Syed Tajuddin Maulana Qazi-e-Shariat Darul Uloom, Syed Shawaliullah Umri Maulana Abdul Salam Naib-e-Qati-e-Shariat Islamic Court President, Jamiat-e-Ahl Hadith. G.A. Bawa Deputy Commissioner of Police, Retired Chairman Karnataka State Minority Ex-Commission. Advocates Syed Munewar Secretary HHS and HMS Complex Kabanpet, Bangalore. Mirza Atiq-ur-Rahman Secretary Hillel Welfare Trust and Hamdard Education Society, Mysuru. Advocates from the convener Mr. Mudassir Ahmad Khan gave a brief account of the object and purpose of the forum, and he and his young advocate friends evinced their interest in working for the forum. The guest of honor also spoke about the necessity of having such a forum in Mysuru for the help of poor and downtrodden section of the society. The advocates present also expressed their best support in carrying out the activities of the forum for the purpose of achieving the real goal. Senior Advocates. Advocates Javed practicing 35 years. Advocates Kalimullah Sharif Gold Medalist. Advocates S. Nazima Begum. Advocates Syed Altaf Mahiuddin B.Com LLB and 3 years Diploma in Secretarial Practice. 37 years of service in Judicial Department as stenographer for 7 years in Mysuru Dist and 30 years as judgment writer attached to PDJ at Karwar, Tumkur, and Chamrajanagar. Took voluntary retirement on the 31st of December 2014 and enrolled with State Bar Council in the month of February 2015, and ever since then, practicing mostly on civil side. Practice is a passion to extend generous legal service to the needy in the society. And others were felicited in the said gathering. In turn, the senior advocates wished for long life of the forum. The meeting was concluded by taking oath that they would respect and uphold the Constitution of India written by Honorable B.R. and singing of National Anthem by all the members present. सबसे पहले मैं आज जो हमारा ये मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स का जो फोरम का ये इजलासी एक प्रोग्राम है जिसमें हम यहाँ के सारे मैसूर के मुस्लिम एडवोकेट्स आज एक फ़िक्र लेकर जुड़े हुए हैं। सबसे इसके अंदर जो है सबसे बड़े दो मकासद हैं। एक है हमारा वेलफेयर, जो हम वकीलों की आज माली हालत, माजी हालत, इन किसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना, और दूसरा जो है और एक दूसरा सबसे बड़ा मज़ीद ये जो है हमारी कौम व मिल्लत के मामले को लेकर पिछले कई सालों से, कई बरसों से जो हालात हम लोगों पर आए हुए थे, उस वक्त हमारा क्या रोल होना था और हम लोग क्या किए, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस मकासद के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उलमा किराम ने ये कहा कि मसाजिद को भी इसमें जोड़ें और उलमा किराम के मशवरों पर काम हो सकता है, इस तरह का एक मशवरा था। जी ज़रूर। देखो, सबसे बड़ी बात है ये, हम लोग पिछले मैसूर की हालत, मैसूर जो है कर्नाटका की रियासत में एक ऐसा शहर, एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर अक्सर हम लोग फसादात को झेलते हुए आए हुए हैं। तो जब फसादात यहाँ पर होते हैं उस वक्त जो है ज़्यादातर हमारी कौम जो है इसमें मुतासिर होती है, और जब मुतासिर होती है तो हम लोगों का यहाँ पर कोई किसी किस्म का एक लीगल एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, जहाँ रहनुमाई नहीं रहती, और लीगली जो है हम लोग कुछ आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पा सकते, इसलिए कि यहाँ पर नुमाइंदगी जो है वो एकदम बेकार है, जो कुछ करते नहीं और बताते बहुत कुछ है। इन सब हालातों से हम लोग खुद गुजर चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2009 के अंदर हम लोगों के ऊपर क्या हालात आए थे, हम क्या किस किस्म से हम
ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने फेस किया था। तो ये सब चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाना ज़रूरी समझा। सर, आपने आज कहा कि दारुल ख़ज़ा की अहमियत को कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, और ये भी कहा कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस हो या कुछ भी हो, कोर्ट को जाने से पहले दारुल ख़ज़ा के जो काम है उसकी खिदमत को ले बोली, ये बहुत बड़ा काम करता है। देखो, दारुल ख़ज़ा जो है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, जो शरिया है, मोहम्मडन लॉ है। आज ये लॉ जो है सिर्फ शादीशुदा मसलों के लिए नहीं है। ये दारुल ख़ज़ा जो है हमारे शरीयत के अंदर, देखो सबसे बड़ा मसला सक्सेशन, जो हमारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर उसके अंदर पार्टीशन होना या कुछ भी ऐसा कुछ मसला है, तो आप दारुल ख़ज़ा को जाएं। तो वहाँ पर भी अगर हमारे कोर्ट को भी आएंगे तो वहाँ पर भी मोहम्मडन लॉ के हिसाब से ही होगा, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये नामालूमात की कमी की वजह से ये जो है हमारी कौम जो है बहुत उनका जान और माल और वक्त बर्बाद कर रही है। वो अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा? हाँ, अवेयरनेस के लिए देखो हमारे इस प्लेटफॉर्म का वो भी एक मकसद है। हम लोग जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर लीगल नॉलेज और लीगल एजुकेशन की बिल्कुल कमी है, बिल्कुल। अगर हम लोग लीगल एजुकेशन के बारे में एवरी एकेडमिक जो साल का शुरू होता है उस वक्त काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये लॉ जो है बहुत वास्ट फील्ड है। वास्ट फील्ड बोले तो क्या, सिर्फ इसके अंदर क्रिमिनल सिविल नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अलग लॉज हैं। जैसा कि तुम्हारा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तुम्हारा KAT है, KET है, ऐसा DRT है, ऐसा बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसकी हमें मालूमात की कमी है। और वो सब अगर हमें मालूम होकर अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो वो कौन कर सकते हैं? ये लीगल फ्रैटर्निटी। हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग हर साल जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, PUC के बाद क्या करना, बाद डिग्री के बाद क्या करना, ये हमारे से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह ये सब हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कम है, तो हम लोगों ने ओपन रखा है कि हमारे पड़ोसी जो ज़िले हैं, जैसा कि चामराजनगर है और मंडिया है और कूर्ग है, इन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर इंशाअल्लाह। और बेंगलुरु से, देखो बेंगलुरु में क्या है, हाल में बेंगलुरु में भी जो है बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी जो है इसी तरह का एक गेट टुगेदर होकर वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक निज़ाम बन चुका है। तो उनके गाइडेंस और उनके एडवाइस के ऊपर जो है आज यहाँ पर एक कोशिश हुई है। तो आप लोगों से हमारी दुआ है कि गुजारिश है, दुआ है, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें। ओके, आप लोग एक चीज़ पूछ रहे थे मुझे, मस्जिदों के साथ हमारा क्या होगा? तो हमें क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए उसे फाइनेंस और फंड्स की ज़रूरत होती है, जो वो और दूसरे कई दीगर मसलों को जो है ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे वकला यानी एडवोकेट फॉर्म को कहीं ना कहीं ये जो नाउमीदी के आसार दिखाई दे रहे थे, मैं समझता हूँ आज मुस्लिम एडवोकेट फॉर्म का आपकी तरफ से यहाँ पे आगाज़ होना एक तरह की एक उम्मीद की किरण कही जा सकती है। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म से वो काम हो सकेंगे जो अब तक नहीं हुए? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह हमारे हाथ से जो भी बन हो सकता है हम करेंगे। और देखो क्या है, ये बहुत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत बड़े बड़े वकील हैं, वकला हैं जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह कल के दिन अगर उनकी भी ज़रूरत पड़ी और गैर भी हैं तो उनकी भी हम लोग असिस्टेंस लेंगे। बाकायदा हम इस जो मुहिम को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। हज़रत, आपने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि इस मामले को मसाजिद को जोड़ें, और ये भी आपने कहा जी कि चंदगी पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको देने के लिए तैयार हैं, तो इसका क्या कहना है? जी हाँ, इंशाल्लाह आज 25 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता मैसूर में मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स फॉर्म की एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाया है इन लोगों ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुसलमान एडवोकेट की एक कमेटी बन रही है, और उलमाए किराम, मैंने मशवरा दिया था कि उलमाए किराम को लेकर एक कमेटी बना लें इंशाअल्लाह ताला, और इनके मशवरों से काम करें। हर मामले पर हम काम करेंगे। मस्जिदों को इस वक्त अपना एक मरकज़ बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक पैगाम पहुंचाने के लिए। मस्जिद से बढ़कर कोई जगह नहीं अल्लाह के घर से, यहाँ से हम मुसलमानों को अच्छा पैगाम दे सकते हैं। आज लायर मुदस्सिर साहब ने जो बुलाकर यहाँ पर मैसूर के मुस्लिम लॉयर की एक जो कमेटी बनाई है, ये बहुत अच्छा काम है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी पूरी कमेटी को, सुन्नी जमीयत उल उलमा और उलमा अहले सुन्नत मैसूर की जानिब से, और खुसूसियत के साथ हमारी मरकज़ी
तंजीम अहले सुन्नत व जमात जिनके सेक्रेटरी जमील अहमद अशफी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी तंजीम की जानिब से भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हम वक्त हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं और वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवान बच्चों को वकील बनाएं, LLB पढ़ा करके कोर्ट के पास भेजें। हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, इंसाफ को लेने के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है। और दारुल क़ज़ा का भी जहाँ तक मामला है, ये लायर अहबाब को हम साथ में लेकर काम कर रहे हैं। लायर मुदस्सिर साहब और बहुत सारे लायर अल्ताफ़ साहब, अकबर साहब, ये सब हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दारुल क़ज़ा इदारा शरिया मस्जिद क़ादरिया अहले सुन्नत व जमात अकरार, जहाँ के चीफ़ क़ाज़ी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेख बिलाल साहब हैं, उनका मैं नायब हूँ। बहुत अच्छे ज़रिए से हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इन लायर अहबाब का साथ रहा तो हम दीगर भी लोगों की खिदमत करने के काम करेंगे।